Hello everyone. Vishesh Goswami welcomes you on behalf of Saraswati International Academy, Ratavapi. Students, today we will start with a new lesson of Subject Science, Standard 10. Today we will start with chapter number 6, that is Life Processes. This chapter is very important for us because 4-mark question will come from this chapter only, and it is also useful to crack entrance exams like NEET or good CET for higher studies. Okay, students, we will start with whether anything is alive or not. How we will decide? So criteria to decide whether something is alive or not. Most important criteria to decide whether something is alive or not is movement. Means whether if something is moving, then we will consider it as a living thing. For example, if we see a dog running, or a cow chewing curd, or a man shouting loudly on a street, we know that these are living beings. But what if the dog or cow or the man were asleep? We would still think that they were alive? Yes, by checking whether they are breathing or not. So if they are breathing, we will consider them as a living being. What about plants? Someone will say plants are green in color, so they are alive. But we cannot see any visible movement in any plant. So how we will decide whether they are alive or not? So all living things move without the help of any external help. Some movement are easily visible, like the movement of body part. Some movement are not easily visible, like a molecular movements. Molecular movements in cells and tissue is necessary for all living processes. So today we will discuss about different life processes which is carried out in our body. Here are some of the examples like moving birds, fish, and moving molecules are given. So anything which is moving means in our body it is made up of organs. Organs are made up of tissues are made up of cells, and cells are made up of many macromolecules. These macromolecules are made up of micromolecules. These micromolecules are continuously moving in our body to carry out different activities. So the movement considered as a one of the criteria whether the person is alive or not. Life processes. Which are the life processes? Life processes are the basic processes in living organism which are necessary for maintaining their life. The basic life processes are nutrition, respiration, transportation, and excretion. So let's have a look one by one. First, nutrition. Nutrition is the process of taking food by an organism, and it is a utilization by the body for life processes. Okay, so nutrition is basically we are taking food, we are taking chapati, sabji, dal and chawal. This food material will enter in our body and it will get digested with the help of a digestive system. Over here digestive system has been given on a lower side, you can see over here. So it will get digested by our digestive system. Why digestion is needed? Because this food material which we are taking, they are macromolecules. They contain carbohydrate, lipids, proteins. These are the macromolecules which are having very large size. So our blood or our cells are not capable to take this food material in our body directly. So very first we need to break down it and we need to convert it into simpler form. Once it will convert into the simpler form, then only we can take it in our body. So nutrition is basically taking of a food,
digestion of food and convert it into from complex material to simpler material, and now the simpler material we will absorb it in our body. This process is known as a nutrition. Second, respiration. It is a process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. So basically this process is carried out to release energy. Why we need energy? क्यों चाहिए हमें एनर्जी? हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी होती है, जैसे कि हम लोग चलते हैं, हम लोग हर रोज़ डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं. For each and every activity we need energy. From where we get this energy? You will say from food we will get this energy. But food में से energy कैसे produce करेंगे? So for the production of energy from this food material, one process is there and it is known as a respiration. And it is carried out in cell. Cell के अंदर होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं cellular respiration. Over here respiration is not just breathing. हम लोग ब्रीदिंग की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पायरेशन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन. सो व्हाट डज इट मीन? सेल के अंदर जो फूड मटेरियल है, फॉर एग्जांपल वी कंसिडर कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट. सो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज सेल के अंदर ब्रेक डाउन होगा विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, एंड ड्यूरिंग दिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एनर्जी विल प्रोड्यूस. This energy will produce in the form of a ATP. So this process is known as a respiration. As it is carried out in cell, it is also known as a cellular respiration. Now, during cellular respiration, oxygen is needed. And at the end of this respiration process, with energy, carbon dioxide will release. So two gases are taking part in this. First, ऑक्सीजन यूज़ होता है प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम एटमोसफियर, एंड टू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर वी नीड अनदर सिस्टम, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर. ओके, नाउ वन मोर थिंग आई हैव सेड. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिमूव करना पड़ेगा बॉडी में से. क्यों? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. वी कैन नॉट स्टोर इट इन आवर बॉडी, सो वी नीड टू रिमूव इट. नाउ फॉर द रिमूवल we need again one system. So respiratory system is present in our body to release carbon dioxide, to remove carbon dioxide from our body. So this is about respiration, and why breathing is needed in respiration we have discussed. Another process, another life process, very important, transportation. पहले definition देख लेते. It is the process by which food, oxygen, water, waste material are carried out from one part of the body to other part. So over here different material are required in different part of body, लेकिन उसके सोर्सेस अलग अलग जगह. फॉर एग्जांपल हमने जो ऑक्सीजन थ्रू ब्रीदिंग लिया, जो वो कहाँ तक पहुँचा? लंग्स तक पहुँचा. नाउ फ्रॉम लंग इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. फॉर एग्जांपल हम रनिंग, तो ड्यूरिंग रनिंग आई विल यूज़ माई लेग मसल्स. तो लेग मसल के अंदर जब रेस्पायरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पायरेशन, उस टाइम पे बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए. कहाँ पे चाहिए? लेग मसल में. बट ऑक्सीजन कहाँ पे है? लंग में है. तो लंग से ऑक्सीजन को लेके हमें लेग मसल तक पहुंचाना है. दिस प्रोसेस इज नॉन एज अ ट्रांसपोर्टेशन. ऐसे बहुत सारी चीज़ें. फूड मटेरियल की बात करें, फूड मटेरियल का डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फूड मटेरियल को हमें थ्रू आउट बॉडी में पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. हर एक सेल तक वो पहुंचना चाहिए. तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? थ्रू वन प्रोसेस, एंड इट इज़ नॉन एज अ transportation. So this transportation is very important
to transport food material, oxygen, water, waste products, and many more things. For transportation, we have one system and it is known as a circulatory system. कौन सी सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सी चीज़ें, कौन से ऑर्गन है वो पार्टिसिपेट करेंगे? सो वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हार्ट. सेकेंड, आर्टरी एंड वेन. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज ब्लड. सो step by step we will discuss about this later on. Now, next, excretion. It is a process by which waste products are removed from our body. Excretion, why it is important? चलो हम लोग एक टास्क लेते हैं. सबको मैगी बहुत अच्छी लगती है, तो किचन में, और मैगी हम लोग खुद बनाते हैं, बराबर. आप लोग खुद मैगी बनाते हो, अच्छा लगता है, वो फटाक से बन जाती है 2 मिनट में मैगी. सो ड्यूरिंग मेकिंग मैगी बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलती है. आप किचन पे देखो कि भाई आपने मैगी बना ली और खा ली, फिर किचन पे मम्मी जाके देखे, अरे बाप रे, बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, कुछ भी ढंग से नहीं है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा है. जैसे कि मैगी का रैपर है, या फिर अगर आपने वेजीज यूज़ किए उसके अंदर, तो जो वेज मटेरियल है उसके वेस्ट प्रोडक्ट भी वहाँ पे पड़े होंगे. सो वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट है वहीं पे रखो 2 दिन के लिए, चलेगा? नहीं, वी नीड टू रिमूव इट. क्यों? अगर वो वहीं पे पड़ा रहेगा तो वो बास मारना स्टार्ट हो जाएगा और टॉक्सिक हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सो वी नीड टू रिमूव इट. लाइकवाइज ओनली हमारे बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी में बहुत सारे बाई प्रोडक्ट वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस होते हैं. वो सारे वेस्ट मटीरियल को हमें रिमूव करना है फ्रॉम आवर बॉडी. बेसिकली जो फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल में जो प्रोटीन रहता है, वो प्रोटीन अगर एक्सेस है तो वी नीड टू रिमूव इट फ्रॉम आवर बॉडी. वी जनरली रिमूव, इन केस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो प्रोटीन को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ यूरिया. सो वी नीड टू रिमूव दिस यूरिया फ्रॉम आवर बॉडी. तो यूरिया को रिमूव करने के लिए एक पूरा ऑर्गन सिस्टम है, एंड दैट ऑर्गन सिस्टम इज नथिंग बट एक्सक्रीटरी सिस्टम. एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन जो ऑर्गन है कौन सा है? किडनी. सो वी नो अबाउट किडनी वेरी वेल. वी विल डिस्कस इट अबाउट बट लेटर ऑन. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body, for our growth of body, to repair the damaged part of the body, and for energy. So generally what is nutrition? Nutrition is process of taking food by organism. Organism ने, human being ने food लिया, देन वी विल यूटिलाइज इट. पहले तो डाइजेस्ट करेंगे, पूरे बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन वी विल यूटिलाइज इन डिफरेंट एक्टिविटी. जैसे कि हमने टू बिल्ड द बॉडी और फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बॉडी, कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया उसको रिपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे, एंड मेन पर्पस कि भाई हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको यूज़ करेंगे. सो दिस आर दी प्रोसेसेस. दिस इज़ नॉन एज अ न्यूट्रिशन. सो बेसिकली न्यूट्रिशन 3 चीज़ें देखी: अपटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ अ फूड, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अ फूड मटीरियल. लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, and most of this food are also carbon based molecule. The outside raw material used by living organism are food, water and air. So अर्थ के ऊपर जितने भी लाइफ है, ऑर्गेनिजम्स है, दे आर डिपेंड ऑन द फूड मटीरियल. Some of the smaller sized organisms, they are dependent on the inorganic material, but animal like us or organisms like us, we generally utilize food material which comprise of very complex molecules, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है.
ये जो रॉ मटेरियल है वो आया कहाँ से? तो ये रॉ मटेरियल जनरली आता है प्लांट में से. लेट्स हैव अ लुक. सो ऑन दी types of the food processes or making of a food or getting a food, nutrition is of a two type. So let's have a look what is mode of nutrition. There are two main mode of nutrition. They are autotrophic nutrition and heterotropic nutrition. Autotrophic, auto means self governing. So nutrition, food prepare हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में खुद से, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म खुद फूड क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है. देन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज अ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स सेल्फ. हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स, हेट्रो मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर. सो ऑन द बेस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो टू टाइप्स, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म एंड हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म. ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाएगा by utilizing a simpler inorganic compounds, it will prepare their own food. So this type of organisms are known as a autotrophic organism, and this type of nutrition is known as a autotrophic nutrition. So let's have a look what is autotrophic nutrition. It is a nutrition in which organisms prepare their own food from the simpler inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई. We will consider each and everything step by step. First, कोई ऑर्गेनिज्म है वो खुद खाना बनाएगा, कौन सी चीज़ें यूज़ करके. सो पहला है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. किसके प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग. चलो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल कौन से आएंगे? ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? वी नो दैट ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. It is a nutrition in which organisms get their food directly or indirectly from plants. Examples: all animals including us, fungi and some of the bacteria. Types of heterotropic nutrition. So let's have a look. Types of heterotropic nutrition. So three types are there. Mainly three types of heterotropic nutrition: saprophytic, parasitic and holozoic. Let's have a look one by one. First is saprophytic nutrition. It is a nutrition in which organisms get their food from dead and decaying organisms. They break down the food material outside their body and then absorb it. Examples: mushroom, bread mold, yeast and some bacteria. So basically what is saprophytic nutrition? In saprophytic nutrition, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एग्जांपल दिए, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड ईस्ट. बेसिकली दे आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटीरियल्स. डेड एंड डिकेइंग मटीरियल के ऊपर डिपेंडेंट है. क्यों ऐसा है? बिकॉज सी, अगर आप एक चूहा देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट वन माउस, लाइव माउस, तो अगर वो जिंदा है तो वो स्मेल नहीं करेगा, बैडली स्मेल नहीं करेगा. लेकिन अगर मरा हुआ चूहा हमारे घर में है तो वो तुरंत ही बास मारना स्टार्ट करता है. इतनी टेरिबल स्मेल आती है कि हम लोग वहाँ पे खड़े भी नहीं रह सकते. ऐसा क्यों? तो इफ़ माउस इज लाइव, उसका एक सिस्टम एक्टिव होगा विच वी कॉल इम्यून सिस्टम. दिस इम्यून सिस्टम फाइट्स अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस. लाइक बात करें अगर ईस्ट की या फिर बैक्टीरिया की या फंजाई की, तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे फंजाई हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया है, बट
दे कैन नॉट अटैक ऑन अस. क्यों? क्योंकि हम लोग जिंदा हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जिंदा है, एक्टिव है. जैसे ही ऑर्गेनिज्म मर जाएगा उसका इम्यून सिस्टम भी वर्क करना स्टॉप करेगा. तो तुरंत ही ये जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड एंड डिकेन मटेरियल पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे. दे विल प्रोड्यूस सम डाइजेस्टिव एंजाइम एंड दे विल स्टार्ट ब्रेक डाउनिंग दिस फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वन एंड देन दे विल एब्जॉर्ब इट. बराबर. तो डेड एंड डिकेन मटेरियल पे क्यों डिपेंडेंट है आपको पता चला? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इनएक्टिव हो गया है, तो इजीली वो उनको एब्जॉर्ब डाइजेस्ट कर पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे. सेकंड, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. ओके, यहाँ पे एग्जांपल मशरूम का दिया है. मशरूम इज ऑल्सो फॉलोइंग saprophytic nutrition. Second, parasitic nutrition. Parasitic nutrition is a nutrition in which organism get their food from living organism, that is host, without killing them. Just keep it in your mind, without killing them. Example, Cuscuta, orchids, tick, lice, leeches, roundworm, tapeworm and plasmodium. So these are the example of parasitic न्यूट्रिशन. सो दिस ऑल आर नॉन एज अ पैरासाइट्स. अगर हम लोग बात करें क्यूस्क्यूटा और ऑर्किड, बराबर. ऑर्किड, आपने ऑर्किड के फ्लावर्स देखे हैं बाज़ार में, ऑर्किड के फ्लावर आपने बाज़ार में देखे हैं, बराबर. क्यूस्क्यूटा का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है. यू कैन सी ओवर हियर कि भाई पूरे प्लांट को उसने कवर कर दिया है. इट इज़ येलो इन कलर, मतलब कि वो उसके खुद के पास क्लोरोफिल नहीं है. दैट्स वाई प्लांट होते हुए भी वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर. तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट, यू कैन सी ग्रीन लीव्स आर देयर. सो ग्रीन प्लांट इज देयर, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन रेडीमेड फूड सक करेगा. कुस्कुटा जो है वो ये ग्रीन प्लांट मतलब कि होस्ट के अंदर से रेडीमेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा. मतलब कि वो खुद खाना नहीं बनाएगा, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा. बट इट विल नॉट किल होस्ट, मतलब कि जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है उसको किल नहीं करेगा. क्यों किल नहीं करेगा? पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्यों अपने होस्ट को किल नहीं करते? क्यों? अगर उन्होंने किल कर दिया तो फिर फर्दर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? आज पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म ने उसके होस्ट को मार दिया तो कल फिर कहाँ से फूड मिलेगा? दैट्स वाई दे आर नॉट किलिंग देयर होस्ट. Third, holozoic nutrition. This is a nutrition in which organisms take food directly and then digest and absorb it. मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है अमीबा. It carry out holozoic nutrition. We are also example of a holozoic nutrition. हम लोग क्या करते हैं? अगर वेजिटेरियन है तो कोई प्लांट का पार्ट, मतलब कि फ्रूट खाएंगे या फिर पूरे का पूरा प्लांट खा लेंगे, जैसे कि भाजी, ग्रीन वेजीज. देन अगर बात करें नॉन वेजिटेरियंस की, तो नॉन वेजिटेरियन जो है वो किसी एनिमल का ऑर्गन खाएंगे या फिर पूरा ऑर्गेनिज्म ही खा लेंगे. सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉन एज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन. एग्जांपल्स आर अमीबा, पैरामेशियम, बर्ड, फिश, ह्यूमन, एक्सेट्रा. सो दिस आर द मोड ऑफ और टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. कौन से? सेप्रोफाइटिक, parasitic and holozoic. Now we will discuss in detail about autotrophic nutrition. So that is mainly carried out by plants and some of the bacteria. Over here we will only discuss about autotrophic nutrition in plants. So let's have a look which is the process which is useful or which is carried out for the autotrophic nutrition. So that process is known as a photosynthesis. So over here we will discuss about photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, so this is carbon dioxide, this is water molecule in the presence of sunlight and chlorophyll. The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of a starch.
oxygen is released in this process. So at the end of a process of photosynthesis, you will get carbohydrate. This is glucose molecule, C6H12O6. This is glucose molecule, and so many glucose molecule when forms a chain, then it becomes starch, and starch is nothing, it is one type of a carbohydrate. So carbohydrate or glucose will form. With that, 6 molecule of water will again release from 12 water molecule which was utilized. 6 molecule you will again get, and one another byproduct which is very important for us, and that is 6 molecule of oxygen will release during this process. So कौन सी चीज़ें यूटिलाइज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, अगेन carbon dioxide, water will get utilized. This process is carried out in the presence of a sunlight, and for this process what is required? Chlorophyll is required, which is all present in plant, and during this process carbohydrate or glucose or starch will release, water will release, and oxygen will also release. So over here carbon dioxide will utilize and oxygen will release. Process of photosynthesis. Photosynthesis is take place in 3 main step. They are, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, एग्जाम में ये आता है बराबर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सो क्लोरोफिल क्या करेगा? पहले क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सन रेज, फ्रॉम सनलाइट. Second, conversion of light energy into chemical energy and splitting up of water molecule into hydrogen and oxygen. So very first, चलो लाइट एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे टू ब्रेक डाउन वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है बराबर विद द हेल्प ऑफ अ photo energy. So this breakdown is known as a photolysis of water molecule. मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसको यूटिलाइज करके? फोटो एनर्जी को यूटिलाइज करके बराबर. तो यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस होगा? H+ एंड OH- प्रोड्यूस होगा. कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होगी? H+ एंड OH-. नाउ this H+ will attach with the CO2. So CHO will form. What will form? CHO. You can see over here CHO will form. CHO, that is C6H12O6. Now this OH again will break down to release oxygen. बराबर है. ये जो OH है फिर से ब्रेक डाउन होगा और क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन रिलीज करेगा. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, कन्वर्जन ऑफ अ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ रिडक्शन, थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें से हाइड्रोजन एंड OH को स्प्लिट किया. हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होके C6H12 मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बन गया, एंड OH जो है फिर से ब्रेक डाउन होके क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया. ओके, चलो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एक यहाँ पे अच्छा सा पिक्चर लिया है मैंने बराबर. चलो क्या क्या प्रोसेस हो रही है? यहाँ पे ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट के रूट है. रूट क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा सॉइल में से. ओके, फ्रॉम एटमॉस्फेयर इट विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, वाटर भी चाहिए ही चाहिए. चलो, इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट it will do photosynthesis process, and during this process two thing will release. First is oxygen and second is sugar. Sugar means
glucose, or you consider it as a starch or carbohydrate. So this is a process of photosynthesis. Okay, chlorophyll. We had discussed about photosynthesis process, in which one term was there, that was chlorophyll. So why it is required, where it is present in plant? Let's have a look. Chlorophyll are the green pigments present in leaves. If you observe a cross section of a leaf under a microscope, we can see cells containing green dot like structures called as a chloroplast, which contains chlorophyll. So chlorophyll कहाँ पे present है वो देखते हैं हम लोग. ये एक लीफ लिया है यहाँ पे, बराबर है. लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन है. लीफ के ट्रांसवर्स सेक्शन में यू कैन सी सो मेनी सेल्स ओवर हियर. ये सारे सेल्स हैं, बराबर. ये जो सेल्स है वहाँ, वो सेल्स को यहाँ पे जूम करके शो किया है. तो एक सेल यहाँ पे शो किया है. यू कैन सी ग्रीन कलर डॉट्स. ओके, ये जो पेरीफेरी पे ग्रीन कलर डॉट है, ये और कुछ नहीं, ये ऑर्गेनल है. क्या है? सेल का एक ऑर्गेनल. विच ऑर्गेनल? ग्रीन कलर का है, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनल होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा. तो यहाँ पे नीचे क्लोरोप्लास्ट शो किया है, बराबर. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल. सो वन बाय वन वी विल सी ईच स्ट्रक्चर. चलो, यहाँ पे एक लीफ का स्ट्रक्चर दिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए लीफ. दिस इज नॉन एज अपर एपिडर्मिस, मतलब कि लीफ का ऊपर का लेयर. दिस इज नॉन एज अ लोअर एपिडर्मिस, मतलब कि लीफ का नीचे का लेयर है, बराबर है. ये सेंटर में जितने भी सेल्स आपको दिखाई देते हैं, सारे सेल्स को हम लोग बोलते हैं मेसोफिलिक सेल. क्या बोलते हैं? मेसोफिलिक सेल. दिस लीफ इज ऑफ मोनोकोट प्लांट. तो मोनोकोट प्लांट के अंदर दो टाइप के सेल्स रहते हैं. एक पेलिसेड सेल्स है जो अपर एपिडर्मिस के नज़दीक है, अपर एपिडर्मिस के नज़दीक, और दूसरे स्पॉन्जी सेल्स रहते हैं. स्पॉन्जी सेल्स है वो लोअर एपिडर्मिस के पास रहते हैं. On lower epidermis, you can see over here, on lower epidermis, many pores are there, and these pores are known as this is stoma, not stoma, stomata. It is known as a stomata. These pores are known as a stomata. Fine. Okay, these are the air spaces present over here. Okay, चलो, ये जो मेसोफिलिक सेल है, ये मेसोफिलिक सेल पे आप देख सकते हो पेरीफेरी पे डॉट 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 दिए. ये डॉट डॉट क्या है? ये कुछ नहीं और कुछ नहीं, लेकिन ऑर्गेनल. कौन सा ऑर्गेनल? क्लोरोप्लास्ट. सो लेट्स हैव अ लुक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, ये यहाँ पे एक मेसोफिलिक सेल शो किया है. बाहर है सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. उसके अंदर रहेगा सेल मेम्ब्रेन. सेंटर में, एज दिस इज अ प्लांट सेल, एक बड़ा सा वैक्यूल रहेगा सेंटर में. वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं. साइड पे साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म के बाद यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, प्लांट सेल है तो न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं रहेगा, थोड़ा साइड पे रहेगा, बराबर. और ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाए हैं, दे आर नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनल, दैट इज नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट. सो हियर वन क्लोरोप्लास्ट इज गिवन. चलो, क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखते हैं हम लोग. सो दिस इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अगर आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा. कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट इज हैविंग 2 आउटर लेयर, बराबर. तो यहाँ पे आउटर लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन. देन उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन रहता है, इंटर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन. सो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ, और इट इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड ओवर हियर इनर मेम्ब्रेन. दोनों मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ओके, यहाँ पे जो येलो कलर का जो पूरा एरिया शो किया है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा. क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. और इट इज ऑल्सो नॉन एज अ मैट्रिक्स. Okay, now a coin-like structure is given over here. Okay, a coin-like structure is given over here and it is known as a thylakoid. क्या बोलते हैं इसको? थाइलेकोइड. ये थाइलेकोइड के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है. ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, इट इज प्रेजेंट इन दिस थाइलेकोइड. नाउ थाइलेकोइड, so many thylakoid are present arranged in a stack-like pile structure.
तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। तो यहाँ पे ग्रेनम शो किया है, यू कैन सी ओवर हियर। सो मेनी ग्रेनम अटैच विथ ईच अदर विथ द लेमिला एंड द एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज अ ग्राना स्ट्रक्चर। ये जो ग्रेनम है और थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड के अंदर क्या रहता है? थाइलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल रहता है। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय दिस क्लोरोप्लास्ट। नाउ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज डिवाइड इनटू टू सब प्रोसेस। पहला है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब क्या है? लाइट रिएक्शन मतलब हम लोग वाटर को स्प्लिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट एनर्जी एंड हम लोग प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी। सो ये जो लाइट रिएक्शन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो लाइट रिएक्शन प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? थाइलेकोइड के अंदर। कहाँ पे होता है? थाइलेकोइड के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके लिए उनको चाहिए क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है? थाइलेकोइड के अंदर। फोटोसिंथेसिस की दूसरी प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा के अंदर। कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन जो है, डार्क रिएक्शन में क्या होने वाला है? डार्क रिएक्शन में ये जो लाइट रिएक्शन के थ्रू एटीपी और एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो एनर्जी को यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में, फूड में। सो ये जो प्रोसेस होती है वो स्ट्रोमा में होती है। क्यों स्ट्रोमा में होती है? क्योंकि ये प्रोसेस के लिए बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए और ये सारे एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? स्ट्रोमा के अंदर। दैट्स वाई डार्क रिएक्शन इज कैरिड आउट इन स्ट्रोमा। समझ में आया? फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन हम लोग सन एनर्जी को यूज़ करेंगे, वाटर को स्प्लिट करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके, डार्क रिएक्शन में क्या होगा? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, वो एनर्जी को यूज़ करेंगे और कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। नाउ ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट is one of the organelle which is very important for photosynthesis process. ओके, यहाँ पे एक का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है और लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन है, हमने वैसे भी डिस्कस कर लिया। दिस इज़ नॉन एज अपर एपिडर्मिस, दिस इज़ नॉन एज अ लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे स्टोमाटा है। स्टोमाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? वो बाद में देखते हैं, क्योंकि वो दो प्रोसेस करेगा। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा यहाँ पे, बराबर, एंड इट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। सो हाई वाटर वेपर कंटेंट यहाँ पे, लो वाटर वेपर कंटेंट यहाँ पे, तो वाटर वेपर जो है वो बाहर रिमूव होगा। ओके, सो दिस स्टोमाटा इज यूजफुल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड for the removal of water vapor, removal of water in the form of a vapor. This process is known as a transpiration process. Okay, so let's have a look. What is stomata? Stomata are tiny pores present in the leaves through which exchange of gases take place. Each stoma has a pair of guard cells which controls the opening and closing of the stomata. When the water enters the guard cell, it swells and pores open. When the guard cells lose its water, it will get shrink and pores will get closed. So let's have a look. Structure of stomata. You can see over here. See, this is a structure of, or this is a section of epidermis of a leaf. ये leaf के epidermis है और उसके ऊपर एपिडर्मल सेल, यहाँ पे बहुत सारे एपिडर्मल इरेगुलर सेल्स हैं। बीच बीच में आपको स्टोमाटा दिखाई देंगे। कैन यू सी? यस, बीच बीच में एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। सो दिस आर द स्टोमाटा। स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ टू सेल्स। ये जो सेल्स ग्रीन कलर के यहाँ पे शो किए, उसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं उसको? गार्ड सेल। इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल ओनली। ये जो दो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल का, ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल का जो अंदर का वॉल है वो बहुत ही थिक है। ये अंदर का जो वॉल है बहुत ही थिक है, बाहर का जो वॉल है वो थिन है।
बराबर। चलो नाउ प्लांट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर है, तो वो जो वाटर है वो वाटर यहाँ पे एपिडर्मल सेल के पास होगा। एपिडर्मल सेल के पास से वो वाटर एंटर होगा गार्ड सेल में, मतलब कि गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर होगा। जैसे ही गार्ड सेल में वाटर एंटर होता है वो क्या हो जाएंगे, वो फूल जाएंगे, मतलब कि टर्जिड हो जाएंगे। जैसे ही वो टर्जिड होते हैं वो अपना शेप, जो हाफ मून शेप है, वो हाफ मून शेप में आ जाएंगे। ड्यू टू दिस प्रोसेस, वाटर एंटर होने की वजह से जो स्टोमाटल पोर है, सेंटर में जो पोर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही पोर ओपन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस, मतलब कि डे टाइम है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगा, ऑक्सीजन बाहर रिमूव होगा, एंड वाटर विल ऑल्सो रिमूव इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर। सो दिस इज अबाउट स्टोमाटा। Two activities are given in our textbook. First activity, let's have a look. First activity to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. चलो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग देख लेते हैं। तो हमने देखा, जो इक्वेशन दिया था उसमें देखा कि भाई वाटर तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। थर्ड, सनलाइट चाहिए। फोर्थ, क्लोरोफिल चाहिए। चलो एक के बाद एक देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए, अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा। हमें कोई भी चीज़ की अहमियत कब पता चलती है, जब वो हमारे पास नहीं होता है तब पता चलती है। तो वैसे ही यहाँ पे भाई क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है कि नहीं, अगर वो देखना है हमें, तो क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस ये देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरोफिल जहाँ पे नहीं है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा। सो लेट्स हैव अ लुक। टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग अ वेरीगेटेड लीव्स, मतलब कि यहाँ पे क्रोटोन प्लांट लिया है, और क्रोटोन प्लांट या फिर मनी प्लांट भी ले सकते हो, बराबर। तो ऐसा प्लांट लेना है जिसकी लीफ के ऊपर थोड़ा पोर्शन ग्रीन कलर का होना चाहिए, थोड़ा नॉन ग्रीन मतलब कि थोड़ा वाइटिश होना चाहिए, बराबर। ऐसा ही प्लांट लेना है हमें। नाउ कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च इज यूज्ड अप। आपको ऐसे प्लांट को डार्क में रखना है। 3 दिन तक डार्क में क्यों रखना है, क्योंकि ये 3 दिन जब आप उसको डार्क में रखोगे तो ड्यूरिंग दिस 3 days जितना भी प्रीवियसली मेड स्टार्च होगा वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब कि अभी प्लांट के पास कोई भी एक्सेस स्टार्च नहीं है, बराबर। नहीं तो वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं हमें। नाउ देन कीप दिस प्लांट इन अ सनलाइट फॉर 6 hours. Then take a leaf from a plant and mark the green areas of the leaf on a sheet of a paper. मतलब कि पूरा एक पेपर के ऊपर आपको उसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना है, और कहाँ कहाँ पे कौन से रीजन में ग्रीन कलर पोर्शन है वो वहाँ पे मार्क करना है आपको। नाउ देन डीप दिस लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर बाथ टू मेक इट सॉफ्ट. Now then deep the leaf in alcohol and heat it in a water bath टू डीकलराइज एंड रिमूव इट्स क्लोरोफिल। मतलब आपको क्या करना है, ये जो लीफ है, लीफ को पहले हमने गर्म किया पानी में, उसके बाद आपको अल्कोहल में डीप करके उसको फिर से गर्म करना है। अल्कोहल इज अ डीकलराइजिंग एजेंट, मतलब वो क्या करता है, क्लोरोफिल को रिमूव कर देगा। मतलब कि आपका जो लीफ है वो लीफ पूरा अभी कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। कैसा हो गया, कलरलेस। नाउ वॉश द लीफ इन अ वाटर एंड डीप इट इन अ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डीप करोगे। आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर रहता है वो ब्राउनिश कलर है, येलोइश ब्राउन कलर रहता है। ओके, नाउ इट विल बी सीन दैट ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे ओरिजिनली ग्रीन कलर डॉट्स थे वहीं पे एग्जैक्टली आपको ब्लू पर्पल और ब्लू ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई दिए। ऐसा क्यों, जहाँ पे ग्रीन कलर के स्पॉट थे, ये जहाँ पे ग्रीन कलर के स्पॉट थे, दैट मीन्स वहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल था। वहाँ पे क्लोरोफिल था, मतलब कि कौन सी प्रोसेस हुई होगी वहाँ पे, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। ओके चलो, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा मतलब कि क्या प्रोड्यूस हुआ, स्टार्च। नाउ व्हेन आयोडीन रिएक्ट विथ स्टार्च इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लू कलर। तो ऑब्वियसली जहाँ पे ग्रीन कलर था वहाँ पे स्टार्च था, जहाँ पे स्टार्च है वहाँ पे कलर रिएक्शन हुआ और हमें कौन सा कलर मिला,
तो आयोडीन की वजह से ब्लू कलर मिला. सो स्टार्च इज ओनली प्रेजेंट इन दिस एरिया वेयर ग्रीन कलर वॉज देयर. सो इट इंडिकेट्स दैट chlorophyll is necessary for photosynthesis. फ्रेंड्स समझ में आया आपको? ओके जहाँ पे ग्रीन कलर नहीं था, मीन्स कि ये जो पूरा पोर्शन है वहाँ पे ग्रीन कलर नहीं था, मतलब क्लोरोफिल ही नहीं था, तो वहाँ पे हमें ब्लू कलर का रिएक्शन नहीं मिला, मतलब कि स्टार्च नहीं है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ. चलो नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, एक्टिविटी टू शो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए, बराबर. अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला प्लांट को तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा? लेट्स हैव अ लुक. टेक अ 2 potted plant of a same size and keep them in a dark for almost 3 days to utilize all the starch. ये हमने प्रीवियसली बात डिस्कस कर लिया कि भाई क्यों हम लोग 3 दिन के लिए रखते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो मतलब पॉकेट में चॉकलेट है वो पूरी यूटिलाइज हो जाए पहले से ही, मतलब कि जो पहले से बना स्टार्च है वो यूटिलाइज हो जाए और जो एक्सेस स्टार्च कुछ भी ना हो प्लांट के पास. देन कीप द प्लांट इन अ सेपरेट ग्लास प्लेट्स, मतलब कि यहाँ पे जो जार शो किए, 2 जार शो किए, वो जार के अंदर हमें उसको रख देना है दोनों प्लांट को. नाउ कीप अ वॉच ग्लास कंटेनिंग सम ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH नियर वन प्लांट टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे KOH की एक प्लेट रखी है, मतलब कि प्लेट कंटेनिंग KOH यहाँ पे एक जार में रखा है, बराबर. ये दोनों जार को यहाँ पे नीचे से सील कर देंगे, क्यों? क्योंकि बाहर से एयर नहीं जानी चाहिए हमें. ओके ये जो KOH है वो KOH क्या करता है? KOH हैज़ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर, मतलब कि यहाँ पे जार के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा. कौन? KOH. मतलब कि अभी ये जो जार है फर्स्ट ए वाला, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. ओके यहाँ पे हमने कोई KOH नहीं रखा, मतलब कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है. चलो कीप इट फॉर 6 hours इन अ सनलाइट में 6 घंटे के लिए रखेंगे. उसके बाद यहाँ से एक लीफ लेंगे, ये प्लांट में से एक लीफ लेंगे, दोनों लीफ को हम लोग पहले बॉइलिंग वाटर बाथ में रखेंगे, मतलब कि सेल्स लूज हो जाएंगे. उसके बाद हम लोग डीकलराइज करेंगे जिससे क्लोरोफिल जितना भी है वो रिमूव हो जाएगा. नाउ दोनों लीफ को हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन में डीप करेंगे. दोनों लीफ को अगर आयोडीन सॉल्यूशन में हमने डीप किया तो ये वाला जो लीफ है वो ब्लू कलर शो नहीं करेगा, ये वाला जो लीफ है वो ब्लू कलर शो करेगा. क्यों? यहाँ पे ब्लू कलर इसीलिए, ये लीफ के अंदर ब्लू कलर इसीलिए शो किया क्योंकि आयोडीन जो है वो आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्शन देता है और ब्लू कलर देता है. सॉरी माय मिस्टेक. यहाँ पे ब्लू कलर शो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं है. ओके स्टार्च क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि KOH ने सारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं, मतलब कि फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके सेकंड ऑप्शन देख लेते. बी, यहाँ पे जो लीफ है वो ब्लू कलर शो कर रहा है आयोडीन के साथ. क्यों? क्योंकि स्टार्च प्रेजेंट है, तो आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा और ब्लू कलर देगा. स्टार्च क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ. फोटोसिंथेसिस क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके थर्ड, वाटर की अगर बात करें तो वाटर का प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है. पूरे प्लांट ग्रोथ के लिए एंड सर्वाइवल के लिए भी वाटर चाहिए. तो वाटर नहीं देंगे तो पहले प्लांट ही मर जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम लोग कर ही नहीं सकते, बराबर. सो दिस आर दी materials which are required for process of photosynthesis. Okay, thank you so much friends. So today we had discussed about nutrition, we had discussed about types of nutrition, we had discussed about autotrophic nutrition. Now in next part we will discuss about heterotrophic nutrition. Thank you so much friends.